Good morning, Rohan. Yes, morning, Bansi. Yes, morning, Trisha. So, class, here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Yeah, once again, very good morning to all my dear students. Okay, class. So we need to start with entrepreneurial entry at international level. Now we had a little bit discussion about this, that how we can take entry into the international market. But the most important aspect is that what exactly your key purpose to be at international level, why you want to hit the market, what your strength and your weaknesses, on which particular aspects and parameters you are believing that yes, you can easily hit the market hard even at international level. It might be possible that at your home ground you have hit many sixes. It might be possible that you got clean bowled at international level.
So you have to identify your strength, your core purpose, and same time your weaknesses. ज़रूरी नहीं है कि आप होम ग्राउंड में बढ़िया खेले तो वहाँ पे भी बढ़िया खेल सकोगे, क्योंकि वहाँ पे कल्चर अलग है, इंटरनेशनल मार्केट का टेस्ट अलग है, कस्टमर्स की नीड वांट्स एंड डिमांड्स अलग है, इट्स टोटली डिफरेंट वन. So political environment, socio-cultural environment, economy, rules and regulations, politics, political parties, government, central government, entrepreneurial rules and regulations, government compliances, सभी सभी चीज़ें जो है वो अलग है. So before you move to the international level, you have to identify your strength and weaknesses in detail. See, यहाँ पे जो लोकल लेवल पे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, सेम इंटरनेशनल लेवल पे पॉसिबल नहीं होगी. यहाँ पे आपके कंपटीटर्स अलग होंगे, यहाँ पे आपका कल्चर जो है उस हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होगी, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे कल्चर चेंज हो जाएगा. तो आपकी जो स्ट्रेंथ यहाँ पे है वो वहाँ पे ना भी हो. एंड व्हाट आर द कोर पर्पस? You just want to expand your wings, you just want to spread your wings, or what exactly you want to achieve, that you have to identify. And that's the most critical aspect and issue. IKEA furniture mall, nowadays they are in Maharashtra also. Apple is coming to the Bangalore, and few other multinational giants are coming to the India. They do have a very clear cut reason. The first one is ease of doing business, the second one is stable government, the third one is mass production is possible with cheap labor, and same time in India उसको काफ़ी सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे, उसको मास भी मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगा. There could be many reasons for entering into the Indian market. But now when one Indian company is going to spread their wings in foreign, the same research, the same analytics they have to do. For example, Jyoti CNC has acquired France company named Huron, approx 600 crore rupees. 600 or 400, I'm not damn sure, but it can be 500, so in between. 500 crore rupees. Why? What are the reasons behind that? If we can say that the company is located in Germany, then it's good. But France, it's also developed economy. कई बातें ऐसी होती है जो हमको नहीं दिखाई देती है, बट एंटरप्रेन्योर्स को दिखाई देती है. स्कोप उसको दिखाई देते हैं, अपॉर्चुनिटी उसको दिखाई देती है. They can clearly predict that yes, huge profit will be there and so on. It can be many. So the thing is that what your overall goal, what's your strength, and what's your weaknesses as far as the international market is concerned. डोमेस्टिक में आपकी स्ट्रेंथ होगी, वो इंटरनेशनल में नहीं चलेगी. इंटरनेशनल वोटर का टेस्ट अलग होता है. So on the basis of that, you have to identify, you have to clarify, you have to compare, you have to distinguish your strength and weaknesses and what exactly you want to achieve if you are planning to entering into the global market. Now these are the different modes. In that काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने already complete कर ली है, but फिर भी just for the sake of formality we'll go with that. Now the first one is export, that we guys are very much aware about that. The second one is known equity arrangements. Can anyone tell me brief about this known equity arrangements? ये क्या है?
funding except through equity? Actually, no, no, no. Please be online. Just a minute. So, no, no, no. It's not about the equity shares. It's not about anything like that. It's really very nice concept. आप लोगों ने डोमिनोज या अ काइंड ऑफ दैट, इट्स नॉट एक्चुअली फ्रेंचाइजी। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। गुड दिशा, गुड। मैं एक्चुअली उसी पॉइंट पे आ रहा था, बट इट्स नॉट क्लियर कट फ्रेंचाइजी और लाइक दैट, बट यस इट इज रिलेटेड टू दैट। वो मैं आपको समझाऊंगा। उसमें हमारे पास दो तीन पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाऊंगा। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, these are the things, with the help of this you can take entry into the foreign market. नाउ आप लोगों ने स्टारबक्स का नाम सुना होगा, बरिस्ता का नाम सुना होगा, सीसीडी का नाम सुना होगा, यूएस पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हट एंड सो ऑन। ये सब जो है वो सभी अलग अलग मॉडल्स पे काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ऑन द फ्रेंचाइजी ओनली। जैसे कि मैं बात करूँ आपको डोमिनोज की, तो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी आपको नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में। आपको डोमिनोज की, इंडिया नहीं सॉरी, पूरे एशिया में आपको डोमिनोज की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी का रूल है, कंपनी फ्रेंचाइजी देती ही नहीं है। तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा, आना भी चाहिए, कि तो सर ये डोमिनोज के जितने भी आउटलेट्स है वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। एंड यू आर राइट, कि ये सब जो अभी आउटलेट्स है तो वो क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट विथ जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स करके एक कंपनी है जो डोमिनोज का पैन एशिया लेवल का सभी कारोबार मैनेज करती है। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा जुबिलेंट फूड वर्क्स, बट यस पूरे एशिया में, पैन एशिया में, उसका शेयर भी लिस्टेड है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। पूरे एशिया में कंपनी जो है वो डोमिनोज के जितने भी आउटलेट्स है वो मैनेज करती है। ऑल द आउटलेट्स आर कंपनी आउटलेट्स ओनली, मैनेज बाय कंपनी इटसेल्फ, नो प्राइवेट पार्टी। कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है। सभी आउटलेट्स जो है वो जुबिलेंट फूड वर्क्स करके कंपनी है वही मैनेज करती है। अब वो क्या बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी बुकिश भाषा में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी में से एक है नॉन इक्विटी अरेंजमेंट्स में से। ना आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा टर्न की प्रोजेक्ट, काफी पॉपुलर है। स्टार्टअप्स की जब बात आती है या तो एंटरप्रेन्योर्स की बात आती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्न की प्रोजेक्ट्स। एंड पीपल आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि कल आप लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज आए थे, बिजनेस आइडियाज आए थे कि भाई ये करना है, वो करना है, एंड सो ऑन। नाउ आइडिया आपके पास है, but you don't know that how exactly it works, how to convert your ideas into profitable unit। आपके पास ये नॉलेज नहीं है। तो जो बंदा
जिसके पास ऐसा नॉलेज है, द वन हु नोज हाउ टू वर्क एट इंटरनेशनल मार्केट, द वन हु नोज pros and cons of international market, the one who is very much aware about the compliances, rules and regulations that has been decided by the government, foreign government or host government. At that time, that company, that consultancy agency will provide turnkey project. अब वो टर्नकी प्रोजेक्ट क्या है, मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जहां पे कोई कंसल्टेंसी, कोई फॉरेन एंटरप्रेन्योर जो है आपका पूरा बिजनेस फॉरेन में एस्टैब्लिश करवा देगा, उसको 2 4 6 महीने तक चला भी देगा, लेटर ऑन आपको हैंड ओवर कर देगा। वेरी सिंपल लैंग्वेज में वो लेटर ऑन आपको हैंड ओवर कर देगा कि भाई अब नाउ इट्स योर बेबी, यू कंटिन्यू विथ हिम। Turnkey projects, they are charging high for that. Non-equity arrangements, it's a part of that. Then another one is, जैसे कि इंडिया में है जाइडस कैडिला कंपनी है, जाइडस कैडिला। अब यूएसए में कोई एक कंपनी है जिसको जाइडस कैडिला के नाम से मेडिसिन बनानी है, तो ऐसे तो बना नहीं सकती है, तो वो क्या करेगी, जाइडस कैडिला से बात करेंगी और उसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस जो है वो करेगी, जिसमें जाइडस कैडिला अपना पेटेंट, ट्रेडमार्क, मशीनरी एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी है, प्रोसेस है जो भी है, वो नई कंपनी को बताएगी। नई कंपनी अमेरिका में उसी नाम से, उसी टेक्नोलॉजी से, उसी प्रोसेस से दवाई बनाएगी और पूरा अमेरिका में सेल करेगी, एंड जितना भी सेल होगा उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो बीइंग रॉयल्टी ये जाइडस कैडिला को दिया जाएगा, काइंड ऑफ लाइसेंसिंग, क्योंकि जाइडस कैडिला जो है वो लाइसेंस दे रही है कि भाई यस आप मेरे नाम से वहाँ पे बिजनेस करो, प्रॉफिट जो होगा, सेल्स जो होगा, उसमें से आप मुझे रॉयल्टी दे देना, एंड सो ऑन। सो दिस आर द नॉन इक्विटी अरेंजमेंट्स। एक्सपोर्टिंग इज क्वाइट इजी, हमने ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमने लास्ट सेमेस्टर में डन कर ली थी। एक्सपोर्ट जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमने कर लिया था, बट यहाँ पे नाम नया है, मैं आपको बताऊंगा, देन यू विल गाइस से दैट यस वी हैव डिड इट। सो एक्सपोर्टिंग वेरी मच सिंपल। होम कंट्री में आप प्रोडक्ट या तो सर्विसेज बनाओ। गाइस आर यू विथ मी? या थैंक यू। सो होम कंट्री में आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो बनाओगे एंड उसको सेल करोगे आउट ऑफ कंट्री, अक्रॉस द बॉर्डर्स आप उसे सेल करोगे। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग। इंडिया में बना के उसको जापान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश कहीं पे भी बेचो, उसको एक्सपोर्ट माना जाता है। इन शॉर्ट प्रोडक्शन सर्विसेज जो भी है वो आपके डोमेस्टिक मार्केट में होनी चाहिए, उसका सेल्स जो है वो ओवरसीज मार्केट में होना चाहिए, तो आप उसको एक्सपोर्ट बोल सकते हो। अब एक्सपोर्ट में भी दो टाइप है, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या, जैसे कि आज गुजरात में कई सारे ऐसे लोग हैं जो एफएमसीजी आइटम को अब्रॉड में सेल करते हैं, बट डू यू थिंक दैट दे आर सेलिंग इट डायरेक्टली? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे डू हैव लेस इन्वेस्टमेंट। तो उसको वहाँ पे मिडल मैन चाहिए, कोई कंसल्टेंट चाहिए, कोई ब्रोकर चाहिए, कोई कमीशन एजेंट चाहिए, या तो आप जिसको बोल सकते हो कि जो बंदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कारोबार कर रहा हो, आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए। सो थ्रू दैट पर्सन और थ्रू दैट कंसल्टेंसी यू आर सेलिंग योर गुड्स टू द अब्रॉड, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। सो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, इसी के थ्रू जब आप अपना गुड्स और सर्विसेज जो है वो अब्रॉड में सेल करोगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होगा नाउ? अब सोचोगे कि भाई डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या है,
तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें आप अपने इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स खड़े करते हो। आप अपनी कंपनी की ही एक शॉपी वहाँ पे आप एस्टेब्लिश करते हो एंड वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो सेल होती है। Direct exporting, if the entrepreneur wants more involvement without any financial commitment, तो direct exporting through the independent distributors जो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट सेल करेंगे, और द कंपनीज ओन ओवरसीज सेल्स ऑफिस, आप फॉरेन में अपनी एक सेल्स ऑफिस रख दो, वेरी सिंपल, आपकी सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। वर्मोरा इज वर्किंग ऑन दिस, वर्मोरा सिरामिक इज वर्किंग ऑन दिस, the company's own overseas sales office. So this is called direct export, जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, खुद के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, या तो आपकी सेल्स ऑफिस जो है वो फॉरेन में हो, तो उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट बोला जाएगा। एंड अगर कमीशन एजेंट, मर्चेंट्स, इन सभी के थ्रू आप करते हो एक्सपोर्ट, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बोला जाएगा, इन अ वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नाउ दिस इज the crucial part, or we can say the important one, entrepreneurial entry, non equity arrangements. There are main three. It means doing international business through an arrangement that does not involve any investment. So the first one is licensing, the second one is turnkey projects, and the third one is management contracts. सो नॉन इक्विटी अरेंजमेंट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो वहां पे आपका मतलब कंपनी का, एंटरप्रेन्योर का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होगा, एंड देन ऑल्सो ही विल बी इन बेनिफिट। इट मीन्स डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस थ्रू एन अरेंजमेंट that does not involve any investment. Any investment मतलब इतना ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट यस थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे रहेगा, नॉमिनल होगा, इट्स लाइक अ पीनट्स। So three types of non-equity arrangements. The first one is licensing, second one is turnkey projects, and the third one is management contract. Now licensing में क्या है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है Zydus Cadila का, या सो द लाइसेंसिंग क्या है, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि Zydus Cadila, अब वो लाइसेंसी है क्योंकि वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, वो लाइसेंस देगा सामने वाले बंदे को, फॉरेन मैन्युफैक्चरर को, कि भाई यस आप मेरे नाम का, मेरी पेटेंट का, मेरे टेक्नोलॉजी का जो भी मेरे पास है आप उसका इस्तेमाल करो, एंड आप वहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ, वहाँ पे सेल करो, एंड उसकी रॉयल्टी जो है वो आप मुझे दे दो, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे Zydus Cadila जो है वो मैन्युफैक्चरर है,
जाइडस कैडिला जो है वो लाइसेंसी है, जो अपने फॉरेन मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देगा कि भाई यस, आप मेरा नाम, मेरा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, टेक्नोलॉजी जो भी है आप यूज़ करो, वहाँ पे प्रोडक्शन करो, वहाँ पे सेल करो, एंड जो भी है उसमें से आप मुझे एक सर्टेन परसेंटेज रॉयल्टी मुझे दे दो। एंड ये रॉयल्टी जो है वो वरी हो सकती है 2%, 5%, 10%, 30%, डिपेंड्स। एंड एवरी 3 years और एवरी 5 years और एवरी 10 years उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट्स में ये रॉयल्टी के परसेंटेज जो है वो चेंज हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस। अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, रॉयल्टी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यूएस पिज़्ज़ा जो है वो आफ्टर लॉकडाउन, पहले दे पीपल वर टेकिंग 8 to 9% रॉयल्टी। यूएस पिज़्ज़ा, उसके जितने भी फ्रेंचाइज है उनसे वो 8 से 9% रॉयल्टी जो थे वो लेते थे। बट आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी स्टोर्स बंद हो गए, तकरीबन 1200 स्टोर्स बंद हो गए, आउटलेट्स बंद हो गए, तो वहाँ पे उसने रॉयल्टी जो है वो कम कर दी। सो डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, रॉयल्टी जो है वो रिन्यू हो सकती है, परसेंटेज उसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन से लाइसेंसिंग, जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो फॉरेन के मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देगा, परमिशन देगा कि आप मेरी पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस, मेरे प्रोडक्ट जो भी है आप वहाँ पे बनाओ, सेल करो, पैसे कमाओ और उसमें से मुझे रॉयल्टी दो। वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। नाउ टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। बेसिकली मार्केट में कौन सा कंसेप्ट चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिखूंगा, इंडियन आयन एक्सचेंज। अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। बेसिकली हमने शायद बात भी की थी इसके ऊपर। कंपनी इज देयर इन पैकेजिंग मिनरल वाटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, टर्नकी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है, एंड हैविंग टर्नओवर ऑफ 800 to 1000 crore rupees in a year। काफ़ी बढ़िया। And they do have tie-ups with some of the giant one like Bisleri and RMD and few others। So they are hitting very nicely। Now ये इंडियन आयन एक्सचेंज जो है वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल आपको पैकेजिंग मिनरल वाटर का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो इंडिया में करना है, आउट ऑफ इंडिया करना है, कहीं पे भी आपको करना हो। बट यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि बिस्लरी जो है, या तो पतंजलि का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि पतंजलि जो है वो इंडिया में सभी जगह पे है पर फॉरेन में नहीं है। अब पतंजलि को अपना बिजनेस जो है वो श्रीलंका में स्टार्ट करना है, लेट से श्रीलंका में स्टार्ट करना है, तो ये इंडियन आयन एक्सचेंज जो है वो श्रीलंकन की, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंप्लायंसेस है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें जो है वो इंडियन आयन एक्सचेंज स्टडी करेगा, पतंजलि को बताएगा कि भाई यहाँ पे मार्केट इस हिसाब से, यहाँ पे इतने प्लेयर्स है, वहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऐसा है, सप्लायर्स इतने हैं, सो कॉस्टिंग इतनी आएगी, इतने में आप सेल कर सकते हो, इस हिसाब से आप पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो, एंड आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इतने टाइम में फ्री हो जाएगा, आपकी एसेट्स फ्री हो जाएगी, एंड मेनी मोर। इन शॉर्ट, थ्रू आउट रिसर्च एंड एनालिसिस विल बी डन बाय इंडियन आयन एक्सचेंज। फ्री में नहीं करेगा वो, वहाँ पे काफ़ी हैंडसम चार्ज भी करेगा, एंड उसके बाद वो वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी है, फैक्ट्री के लिए जो भी रिक्वायर्ड मशीनरी है, वो सब वहाँ पे आपको एस्टेब्लिश करके देगा, कंपनी चालू करके देगा, 2-3 महीने कंपनी को चलाएगा, एक स्मूथ ट्रैक पे जब कंपनी आ जाएगी तब वो कंपनी आपको हैंड ओवर कर देगा कि भाई ये अब आपका बेबी है, मैंने आपके बेबी को चलना सिखा दिया है, अब इसको दौड़ना कैसे है, दौड़ना कैसे सिखाना है, मार्केट में आगे कैसे बढ़ाना है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन, IT, R&D, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई एंड ऑल दोज थिंग्स, बैक एंड ऑपरेशंस,
प्लस इनसाइड एंड एक्सटर्नल दोनों चीज़ें जो है वो वहाँ पे मैनेज करके आपको दे देगा कि भाई नाउ इट्स योर बेबी, यू हैंडल इट। इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। आपका पूरा प्रोजेक्ट, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप वो आइडिया दो, वो आइडिया को फिजिबिलिटी स्टडी करके आपको बता देगा एंड पूरा प्रोजेक्ट, पूरी कंपनी जो है आपको चालू करके दे देगा एंड लेटर ऑन आपको उसे हैंडल करना है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट्स। कई सारी कंपनीज जो है वो ऐसा काम करती है। ये इंडियन आयन एक्सचेंज कंपनी जो है वो बेसिकली मिनरल वाटर के जो भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स बनाती है विथ द लेटेस्ट एंड द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड दे आर हिटिंग मार्केट। उसके कई सारे प्लांट्स जो है वो गल्फ कंट्रीज में है एंड दे आर हिटिंग वेरी नाइसली। पूरा टर्न की प्रोजेक्ट आपको बना के देते हैं, कंपनी एस्टेब्लिश करके दे देते हैं, फिर बाद में आपको उसे चलाना, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, ये वो सब काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें, तो वो सब आपको रेडी करके दे देंगे। लेटर ऑन आपको उसे सिर्फ चलाना है एंड दैट्स गुड, क्वाइट गुड एक्चुअली। सो ये है टर्न की प्रोजेक्ट। इट मीन्स डेवलपिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग समथिंग इन अ फॉरेन कंट्री। To have a foreign entrepreneur build a factory or other facility, train the workers, train the management, and then turn it over to local owners once the operation is going. Hence the name turnkey operations. Clear class? Okay. So coming to the next one, management contract. बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जुबिलेंट फूड वर्क्स। डोमिनोज ने पैन एशिया के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई पूरे ऑपरेशंस, बैक एंड, इंटरनल, एक्सटर्नल, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, एक्सपांसन, जो भी है वो एशिया में आपको हैंडल करना है, जुबिलेंट फूड वर्क्स को। एंड दे एग्रीड, दे केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग आए, उसको बोलते मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब वहां पे एक चीज जो है वो फिक्स है एंड दैट इज ओनरशिप स्टेक वोंट बी गिवन। स्टेक नहीं दिया जाएगा, कंपेंसेशन होगा, रॉयल्टी होगी, जो भी वो डिसाइड करेंगे वो रहेगा, बट शेयर नहीं दिया जाएगा। शेयर आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप स्टेक। ओनरशिप का शेयर जो है वो नहीं दिया जाएगा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। अ मेथड फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक इंटरनेशनल टास्क। डोमिनोज को क्या करना था, एशिया में एस्टेब्लिश होना था, अपनी चैनल एक स्टार्ट करनी थी, तो उसके लिए उसने जुबिलेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हमारा बिजनेस है, आप पूरा इसको डेवलप करो, एक्सपांड करो, आगे बढ़ाओ, नए नए आउटलेट्स बनाओ, जो भी बनाओ आप अपने हिसाब से बनाओ, हम आपको ओनरशिप स्टेक नहीं देंगे, आपको जो भी बनता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वो रिम्यूनरेशन या फिर कंपेंसेशन या फिर कमीशन जो भी है वो हम आपको दे देंगे। फाइनल ऑथोरिटी, or we can say the final ownership will be in the hand of Domino's itself. उसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स का कुछ नहीं रहेगा, ओनरशिप उसकी नहीं रहेगी। So this is basic example of management contract. The management contract allows the purchasing country to gain foreign expertise without giving ownership of its resources to a foreigner. उसके रिसोर्सेज जो भी है
प्रोडक्ट बोलिए, मशीनरी बोलिए, लैंड बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, सिस्टम बोलिए, कुछ भी है, कहीं पे भी आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। बट देन ऑल्सो they came into contract because of name, because of fame, because of the market needs, and so on. So this is all about licensing. We can say the non-equity arrangements, licensing, turnkey projects, and management contract. Now the next one is very much known to you, class. Foreign direct investment. अब ये क्या है? क्या आप बता सकते हो? Foreign direct investment. Foreign direct investment, or we can say the direct foreign investment. हमने बात की थी, we have already talked about this telecom sector, insurance sector. Investment and controlling in company which is foreign based. Uh, Actually, no. And actually, yes. Both the things are possible. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ पे कंट्री काफ़ी मैटर करती है। कौन सी कंट्री में आप अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। जैसे कि आपको अपना बिजनेस जो है वो फ्रांस में स्टार्ट करना है, तो फ्रांस में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, तो भी आप डायरेक्ट फ्रांस में अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। 100% आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन में नहीं हो सकता। The wholly owned foreign subsidiary has been a preferred mode of ownership for entrepreneurs using direct foreign investment for doing business in the international market. इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने के लिए मेजोरिटी एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट कि भाई जो भी कंट्री है वहाँ पे हमें 100% अलाउ किया जाए, हम हमारी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दें इन्वेस्टमेंट करके। बट वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो वहाँ पे जो लोकल प्लेयर्स है वो धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएंगे एंड लेटर ऑन मेनी इश्यूज विल बी देयर। तो ऐसा जनरली नहीं किया जाता, कंट्रीज जो है अलाउड नहीं करती है। बट यस, अगर हम इंडिया की बात करें तो टेलीकॉम में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की छूट मिल गई है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 76% छूट मिल गई है, पेट्रोल ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल में छूट नहीं है। तो इसीलिए सऊदी अरामको ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया,
उसका माइनॉरिटी स्टेक जो है वो परचेज किया, मेजोरिटी स्टेक परचेज नहीं किया। अगर मेजोरिटी परचेज करते 51%, तो वो हो जाता उसका एक्विजिशन और टेक ओवर। दैट्स वाई इट्स माइनॉरिटी, माइनॉरिटी स्टेक परचेज किया बिलो 50%। तो जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है फॉरेन में, एंड आप वहां पे अपना 100% इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बट गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज 100% फुल्ली ओन्ड फॉरेन यूनिट, बट गवर्नमेंट वो अलाउ नहीं करती है क्योंकि उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। The percentage of ownership obtained in the foreign venture by the entrepreneur is related to the amount of money invested, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सी इंडस्ट्री है, एंड होस्ट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में अगर किसी फॉरेन कंपनी को आना है, टेलीकॉम सेक्टर में आना है, तो अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। 100% आप अपने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करो। बट इंश्योरेंस में आना है तो 76% आपका रहेगा, एंड 24% के लिए आपको कोई भी लोकल प्लेयर ढूंढना पड़ेगा, लोकल कंपनी आपको ढूंढनी ही पड़ेगी कंपलसरी। इसीलिए आप लोग देख सकते हो HDFC लाइफ, बजाज अलियांस, टाटा AIG एंड सो ऑन, फ्यूचर जनरली, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एज फार एज द FDI इज कंसर्न, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट वो लोग अपनी नई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, दे हैव टू गो विद द प्राइवेट प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स। टेलीकॉम सेक्टर में है, टेलीकॉम में फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरी कंपनी आएगी तो अपना खुद का पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सभी कंट्री में अलग अलग है। इट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कुछ इंडस्ट्रीज में 100% है, कुछ इंडस्ट्रीज में कम है। सो दैट्स वाई नाउ ये सब जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, joint ventures, majority interest and mergers, these are the types with that you can go for the foreign direct investment. We have already done with that. Minority interest जो है वो बिलो 40%, सॉरी बिलो 50% का जो भी स्टेक अगर आप उसमें लेते हो, तो डेफिनेटली आप इनिशियली फॉरेन में अपनी एंट्री कर सकते हो। एंड मेजोरिटी काफ़ी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उसमें माइनॉरिटी पोजीशन लेते हैं, धीरे धीरे अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते जाते हैं। वंस दे आर फॉर्म कि नहीं भाई कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो धीरे धीरे अपना पोर्शन जो है वो उसमें बढ़ाते जाते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले बिलो 50%, 2 3 4 5% लेंगे, लेटर ऑन बढ़ाते जाएंगे। देन जॉइंट वेंचर्स ये हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। डू यू हैव एनी इश्यूज इन जॉइंट वेंचर्स एंड ऑल, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब कंप्लीट कर लिया है। You can read this.
Majority interest means you can say acquisition or takeover. Then mergers. We have already done this, right? And these are the types of mergers. Okay, class. So we'll keep up to this only. If you do have any doubts, please let me know. From next session, we'll start with the international trade issues. Actually, this is not part of your syllabus, but for your reference, we'll continue with this. Yeah, you may leave now. That's it for the day. Thank you, class. Enjoy your day.